ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस। ये सेक्शन बात करता है कि अगर मेंटेनेंस सेक्शन 144 के ऑर्डर के बाद किसी भी तरफ से सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं या सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए या वाइफ ने दोबारा शादी कर ली हो तो मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल या मॉडिफाई किया जा सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 146 ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस क्लॉज 1 on proof of a change in the circumstances of any person receiving under section 144 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or ordered under the same section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother as the case may be. The magistrate may make such alteration as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case may be. क्लॉज 1 बात करता है सर्कमस्टांसेस चेंज होने पे अलाउंस बदला जा सकता है। अगर किसी पार्टी के सर्कमस्टांसेस बदल जाएं, जैसे इनकम बढ़ना, जॉब चले जाना या हेल्थ इशू, तो मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट कम या ज्यादा कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हस्बैंड 5,000 मंथ दे रहा था जब उसकी सैलरी 25,000 थी, अब उसकी सैलरी 60,000 हो गई है। वाइफ एप्लीकेशन फाइल करती है, कोर्ट मेंटेनेंस 10,000 मंथ कर देता है। आफ्टर दैट क्लॉज 2 where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court any order made under section 144 should be cancelled or varied, he shall cancel the order of as the case may be, vary the same accordingly। अगर सिविल कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है, जैसे डाइवोर्स केस में फाइनल मेंटेनेंस फिक्स हो गई है, तो मजिस्ट्रेट को अपना पहले का ऑर्डर कैंसिल या मॉडिफाई कर देना चाहिए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए फैमिली कोर्ट ने 8,000 मंथ मेंटेनेंस डिसाइड किया है, जबकि मजिस्ट्रेट ने 6,000 मंथ दिया था। मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर वेरी करता है ताकि दोनों ऑर्डर्स कन्फ्लिक्ट ना करें। आफ्टर दैट क्लॉज 3 where any order has been made under section 144 in favor of a woman who has already divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall is satisfied that a the woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as from the date of her marriage. B the woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of said order, the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order. Subclause V Part 1 in the case where sum was paid before such order from the date on which such order was made. Part 2 in any other case from the date of expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman. C the woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce, cancel the order from the date thereof। सबसेक्शन 3 बात करता है अगर वुमेन को तलाक मिल गया हो तो मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है। इफ शी रीमैरिड, ऑर्डर कैंसिल होगा। मान लीजिए वाइफ को तलाक के बाद भी मेंटेनेंस मिल रहा है, पर अब उसने दूसरी शादी कर ली, मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल होगा फ्रॉम रीमैरिज डेट। आफ्टर दैट बी अगर तलाक के टाइम उसे एक बार में पैसा मिल गया था, कस्टमरी और पर्सनल लॉ के अंडर अगर पैसा पहले मिल गया था, ऑर्डर इनिशियल से ही कैंसिल। अगर बाद में मिला है, ऑर्डर कैंसिल होगा जब तक मेंटेनेंस एक्चुअली पे किया गया था। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मुस्लिम लॉ के अंडर हस्बैंड ने 1 लाख तलाक के वक्त दिया था और बाद में कोर्ट ने 4,000 मंथ भी दिया। मजिस्ट्रेट पहला ऑर्डर कैंसिल करेगा फ्रॉम ओरिजिनल डेट इफ लमसम पहले मिल गया था। आफ्टर दैट सी अगर वाइफ ने डाइवोर्स के बाद वॉलंटरी राइट छोड़ दिए हों, मान लीजिए वाइफ ने लिखित में दिया है मैं मेंटेनेंस नहीं चाहूंगी, कोर्ट मेंटेनेंस कैंसिल करेगा फ्रॉम दैट डेट। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4 at the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 144, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order।
मतलब सब सेक्शन 4 बात करता है सिविल कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त मजिस्ट्रेट ऑर्डर का हिसाब रखे। अगर सिविल कोर्ट में भी मेंटेनेंस केस चल रहा हो तो वो कोर्ट देखेगा कि पहले से सेक्शन 144 में अमाउंट मिल चुका है ताकि डबल बेनिफिट ना हो। मान लीजिए वाइफ को क्रिमिनल कोर्ट से 3000 मंथ मिल रहा है 1 साल से, अब फैमिली कोर्ट 4000 मंथ फिक्स करता है। फैमिली कोर्ट बोल सकता है कि पहले का पेड अमाउंट एडजस्ट किया जाए। इन शॉर्ट सेक्शन 146 ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के हालात बदल जाते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस पर हो या दे रहा हो, वाइफ, चाइल्ड, फादर या मदर को, तो मजिस्ट्रेट उन नए हालातों के हिसाब से मेंटेनेंस अमाउंट बदल भी सकता है या कम भी कर सकता है। अगर किसी सिविल कोर्ट ने फैसला दिया हो जो सेक्शन 144 के ऑर्डर को अफेक्ट करता हो तो मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को कैंसिल या मॉडिफाई कर सकता है। अगर कोई औरत डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस ले रही हो और उसने फिर से शादी कर ली हो, या उसने डाइवोर्स के बाद पूरा स्टेटमेंट अमाउंट ले लिया हो, या वॉलंटरी अपना राइट टू मेंटेनेंस छोड़ दिया हो, तो इन दोनों हालतों में कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर देगा स्पेसिफाइड डेट से। आखिर में अगर सिविल कोर्ट किसी मेंटेनेंस या डोवरी रिकवरी का फैसला करता है तो वो देख लेगा कि सेक्शन 144 के तहत पहले से कोई मेंटेनेंस दिया गया था या नहीं और उसी हिसाब से फाइनल अमाउंट तय करेगा। मतलब हर तरह के फाइनेंशियल एडजस्टमेंट और जस्टिस के लिए ये सेक्शन पूरा मैकेनिज्म देता है। इसको एक चार्ट के माध्यम से और सरल तरीके से समझते हैं। सेक्शन 146 ऑल्टरेशन इन अलाउंस। नंबर 1 चेंज इन सर्कमस्टांसेस। If there is proof of changed circumstances for the person paying or receiving maintenance under section 144, the magistrate may alter the allowance as deemed fit. मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के फाइनेंशियल या पर्सनल हालात बदल जाते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस दे रहा हो या ले रहा हो अंडर सेक्शन 144, तो मजिस्ट्रेट उन बदले हुए हालातों के हिसाब से अलाउंस कम या ज्यादा कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर हस्बैंड की नौकरी चली गई या सैलरी कम हो गई तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि मेंटेनेंस कम किया जाए। तो दैट सिविल कोर्ट्स डिसीजन। If a civil court decision affects the maintenance order, section 144, the magistrate must cancel or modify the order accordingly. अगर किसी सिविल कोर्ट का डिसीजन सेक्शन 144 की ऑर्डर को इम्पैक्ट करता है तो मजिस्ट्रेट को उस ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल करना पड़ेगा। After that, divorced woman. If maintenance was granted to a divorced woman, the magistrate shall cancel the order if she remarries. Cancellation order from the date of remarriage. She received full divorce settlement, customary or personal law. If received before the order, cancellation start from order date. If received after the order, cancellation start from the end of the maintenance period already paid, and she voluntarily surrenders her maintenance right, and cancellation from the date of surrender. ये पार्ट उन महिलाओं के लिए है जिनको डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस मिल रहा हो। कोर्ट ऑर्डर कैंसिल करेगा इन 3 केसेस में। रीमैरिज, अगर महिला ने दोबारा शादी कर ली हो तो मेंटेनेंस का ऑर्डर शादी की डेट से कैंसिल हो जाएगा। फुल डाइवोर्स सेटलमेंट मिला हो कस्टमरी या पर्सनल लॉ के तहत, अगर ऑर्डर से पहले पैसा मिल गया हो कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट से, अगर ऑर्डर के बाद पैसा मिला हो कैंसिलेशन जब तक पेड मेंटेनेंस खत्म हो उस डेट से, अगर महिला ने अपने खुद की मर्जी से मेंटेनेंस छोड़ दिया हो कैंसिलेशन उसी डेट से जब उसने राइट्स सरेंडर किए हैं। आफ्टर दैट recovery decree. If a civil court issues a decree for recovery of maintenance and dowry, it must consider sums already paid under section 144 orders. मतलब अगर सिविल कोर्ट मेंटेनेंस या डोवरी के रिकवरी ऑर्डर पास करता है तो उसे ये देखना होगा कि सेक्शन 144 के तहत पहले से कोई अमाउंट ऑलरेडी पेड तो नहीं हुआ। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर हस्बैंड ने ऑलरेडी 2 लाख रुपए दिए हैं इंटरिम मेंटेनेंस में तो फाइनल रिकवरी डिसाइड करते वक्त कोर्ट को वो पैसे माइनस करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 146 एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म देता है जिसमें अगर हालात बदलते हो तो सिविल कोर्ट का डिसीजन आए या डिवोर्स के बाद कुछ नया हो तो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल या मॉडिफाई हो सकता है फेयरनेस और जस्टिस के लिए। If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share. Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.